Very good evening to students or of class 10. Welcome to all of you in physics class. Okay. First of all, we today we will be asked to all of you that today we will discuss about a numerical related with electrical energy. Okay. And now here is the question, and we will discuss one by one again and come on the whiteboard to all of you. Now numerical is given here, numerical problem based on electrical energy. Okay, the question is given, a bulb is rated at 200 volt 100 watt, what is its resistance? Okay, and 5 such bulbs burns for 4 hours, what is the electrical energy consumed? And also calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. Okay, once again we explain this question. A bulb is rated, that is a bulb is given, and a 200 volt is potential difference of the bulb, and 100 watt is the power, and what is, we have to find out what is its resistance. R is, we have to find out about resistance. Okay, and now such 5 bulbs are burns for 4 hours. 4 hours continue to burn such 5 bulbs, then what will be the electrical energy consumed by burning of 5 bulbs for 4 hours? Okay, and now calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. The rate is 1 unit is equal to 4.60. Then we have to find out how much cost by the 4 bulbs, by the 5 bulbs also, and for 4 hours. Okay, and now here is the calculation of the resistance. First of all, according to question, we calculate the resistance. Okay, here is given 200 volt, that is potential difference of the bulb is V is 200 volt, and 100 watt, that means this is the power, unit of power is watt. So, and we have to find out resistance according to question, R equal to watt. Okay, now by using the formula P equal to V square by R, by the cross multiplication, R into P equal to V square, and now we have to find out R equal to V square by P. Now putting the value of V equal to 200 volt, and the value of P is 100 watt. We will use 200 square, that is V square is given, and now 200 into 200 is given in place of 200 square, and now there is a 100 is in denominator, and now this 20 will be cancelled by this 20, and now 200 into 2, that is 400 this ohms. Okay, it is given, the sign of ohm is given, R equal resistance equal to 400 ohm. Okay, this is calculated, and now we have to calculate the electrical energy consumed. As we know, electrical energy is the also the electric energy is the product of power and time. Okay, and now we have to find out, this is comes by the formula P equal to E by T. That means power is equal to electrical power equal to electrical energy consumed. Rate of electrical energy consumed is also called a power, and so we will use P equal to E by T, and now by cross multiplication E is equal to P into T. Okay, and now here is given P equal to 100 watt, and now we divide 1000 to convert this watt into kilowatt. Okay, because kilowatt unit is the power, that is in commercial unit. Okay, and so we divide 1000 because 1 kilowatt hour equal to 1000 watt. Okay, remember this one also. Okay, and now T, this time is 4 hours, and now we will use electrical energy by the formula E equal to P into T. Electrical energy equal to power into time. Okay, and now electrical energy consumed by one bulb, it is given 0.1, this is power, and into 4 is the time, 4 hours is the time, and so after multiplying this one, 0.4 kilowatt hour, hour is given, time in place of time, this is hour, and 0.4 is also kilowatt. Okay, and now 0.4 kilowatt hour is electrical energy consumed by one bulb. Okay, and now this is given in the question that we have 5 bulbs, and so electrical energy consumed in by 5 bulbs equal to 0.4 into 5, that is 20, here is 2.0 kilowatt hour. This is the
electric energy consumed by 5 bulbs, and now the total electric energy consumed is equal to, this one is 2 kilowatt hour. And now as we know that 1 unit, this is given 1 unit equal to 1 kilowatt hour, and this is 2 kilowatt hour, that means 2 unit is the electrical energy consumed. Okay, and now we have to find out what is the cost of electrical energy. Here is the given cost of 1 unit electric energy is 4.60. It is given 4.60, and now therefore we have to use the electric energy 2 units. So cost of 2 unit means 2 kilowatt hour. 2 kilowatt hour is electricity equal to 4.60 into 2, that is 9.20. 9 rupees 20 paise is the electric energy consumed, and by the burning of 4 bulbs for 5 hours. It is also here is given 5 bulbs. Okay, sorry, it is given the 5 bulbs for 4 hours. Okay, once again I would like to explain you. आप सबका फिर से वेलकम है, फिजिक्स क्लास में आप सबका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, और शुभ संध्या, शुभ स्वागत है आप सबका, और गुड इवनिंग एक बार मैं फिर बता दूं आपको, और इसे हिंदी में समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षाओं में, खास करके बोर्ड एग्जाम में भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन आता है। इससे एक और फ़ायदा है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप जो यूज़ करते हैं उससे कितना यूनिट उठता है, कितना यूनिट खर्च होता है आपका, ये सब अपने से आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से वॉच कीजिए वीडियो को, और आप सब ध्यान दीजिए। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे आप सब क्वेश्चन दिया गया है। एक बल्ब है जो 200 वोल्ट का है और 100 वाट उसका है पावर है, तो कह रहा है रेसिस्टेंस उसका क्या है, प्रतिरोध क्या है उसका, व्हाट इज द रेसिस्टेंस पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है ऐसे ऐसे 5 बल्ब, 5 सच बल्ब्स बर्न्स, 5 बल्ब्स ऐसे 4 घंटे तक जलाए जाते हैं, 4 आवर्स ये टाइमिंग है, दिया हुआ टाइम दिया हुआ है, जलाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना खर्च होता है ये पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट, कितना खर्च पड़ा, जो आपका जो कॉस्ट रुपीज में मनी, कितना मनी खर्च हुआ आपके द्वारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यूज होता है वो उसके द्वारा। तो दिया है कि 1 यूनिट का खर्च, पर यूनिट लिखा हुआ 4.60, 4 रुपया 60 पैसे 1 यूनिट का खर्च है। तो बताइए कि टोटल यूनिट में जितना कंज्यूम होगा उसमें टोटल कितना खर्च आएगा, वो पूछ रहा है। तो पहले तो हमें पता है यूनिट क्या है, कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है ये पता करेंगे, और तब जा करके हम इसे ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए पावर दिया हुआ 100 वाट, यह दिया 100 वाट, 200 वोल्ट दिया हुआ है, ये 200 वोल्ट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आर रेसिस्टेंस निकालना है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, तो वही बाय द यूजिंग फार्मूला पी पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी है पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाई आर रेसिस्टेंस है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वी स्क्वायर आएगा इधर में, फिर आर जब निकालेंगे सेपरेट करेंगे, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी आएगा। अब ये देखिए वी के जगह पर 200 यूज करेंगे हम लोग, 200 वोल्ट है ना, 200 वोल्ट, और ये पी पावर हमारा है 100 वाट, तो 200 का स्क्वायर है, ये नीचे 100 है, 200 को डबल लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिखेंगे, 200 इंटू 200 बाई 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, 200 इंटू दैट इज 400 ओम्स, दिट इज द साइन ऑफ ओम, ओम का ये साइन है रेसिस्टेंस। अब ये हम पता करेंगे, ये हम जान लीजिए रेसिस्टेंस निकल गया हम लोग का। अब ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना, विद्युत ऊर्जा कितना खर्च हुआ इस जो 5 बल्ब के द्वारा 4 घंटे तक जलाने से कितना खर्च हुआ, ये असल में ये पता करेंगे हम लोग। तो पता चलेगा हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जब मालूम चलेगा, इसके बाद हम लोग फिर कन्वर्ट करें, कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए ये E इक्वल टू पी इंटू टी, ये फार्मूला हमारा है, ये फार्मूला यहाँ से पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, रेट ऑफ कहते हैं हम लोग पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर। तो उसको यूज कर रहे हैं, P इक्वल टू ई बाई टी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, T है टाइम हमारा है, P है पावर हमारा। तो ये P पावर 100 वाट है, और ये 100 को देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं किलोवाट में। किलोवाट इस कॉमर्शियल यूनिट होता है, और इसी में इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट होता है। इसलिए ये वाट छोटा यूनिट है, इससे बड़ा यूनिट में लाने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए आया हो यहाँ पे 0.1 किलोवाट, ये पावर निकला हमारा 0.1 किलोवाट, और टाइमिंग कितना है 4 आवर्स। ठीक है, अब यूज़ करें हम लोग यहाँ पे, देखिए फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी
कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम यानी खर्च हो रहा है एक बल्ब के द्वारा, वो निकला हमारा, ये देखिए E = P × T फार्मूला है। तो P है पावर हमारा 0.1 अभी निकाले हम लोग किलोवाट, और ये आवर टाइम कितना 4 आवर, 4 घंटे तक बल्ब जलता है, 5 बल्ब, तो ये निकाले हम लोग यहाँ पे। तो एक बल्ब के सहारे निकला हमारा क्या 0.4 किलोवाट आवर। अब ऐसे कह रहा है ऐसे ऐसे 5 बल्ब यूज होते हैं, ठीक है, 4 घंटे तक चलते हैं, तो क्या खर्च होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ, तो 5 बल्ब के द्वारा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 2.0 किलोवाट आवर ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ बाई 5 बल्ब्स। अब टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा ये कंज्यूम हुआ 5 बल्ब के द्वारा ये हुआ, मतलब 2 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। किलोवाट आवर जो है वो कमर्शियल यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इसलिए ये होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ये 2 किलोवाट आवर है इसलिए 2 यूनिट हो गया, ठीक है। अब इस तरह से इलेक्ट्रिकल बिल कैसे निकालें, कितना इलेक्ट्रिकल बिल खर्च आएगा, कितना बिल आएगा, खर्च आएगा, वो हम देखेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये निकालें अब हम लोग। तो दिया है अभी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये देखिए 1 यूनिट का खर्च दिया है 4.60, यहाँ लिखा है ना यूनिट का खर्च है 4.60 रुपीज़, ओके। देन द कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट का खर्च कितना आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.20 मतलब 9 रुपीज़ एंड 20 पैसे, 9 रुपया 20 पैसा खर्च आया 2 यूनिट दो यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ इसके द्वारा। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का था, और इसे 1-2 बार वॉच करेंगे आप लोग, और वॉच करके आप थोड़ा कमेंट यूट्यूब पर कमेंट भी दिया कीजिए, यूट्यूब पर कमेंट जरूर दीजिए आप सारे लोग, और फिर हम लोग कुछ आगे नए वीडियोस मिलेंगे। और एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि मैं इस वीक में लेने वाला था टेस्ट, लेकिन आज नहीं ले पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में मैं फिजिक्स में टेस्ट लूँगा, 10 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका, आप इसकी तैयारी कर लेंगे आप सारे लोग, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी ये आपका जो ये टॉपिक हो इलेक्ट्रिसिटी, इसी से आपका एग्ज़ाम होगा, आपका टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट की तरह याद कीजिए आप सारे लोग। ऑल द बेस्ट फिर आप सबको, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके।